بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کھانے پکانے کا جی ٹائم مکمل ہو گئے ہے اور پیرا سیما دونوں اپنے کام میں مصروف ہو گئی ہیں. جی ہاں، بنائیں گے کھائیں گے تو پھر پیٹ بھریں گے تو کچھ اور بھی کام کے بارے میں سوچیں گے نا. انتظار کر رہی ہے سیما کہ کب روٹی بنائے گی تیرا. ہاں جی، میں سوچ رہی ہوں کہ یہ جلدی بنائے گی، بھوک سے میرا برا حال ہے. اماں کیا حال ہے؟ بچوں کو اپنی جلدی ہے، ہماری ویڈیو بناؤ. کہتے ہیں کہ ہمیں بھی تو دیکھیں نا. فیضان علی بھی کہہ رہا ہے مجھے بھی دکھاؤ. چلے بھائی ٹھیک ہے. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. آدھے ٹھیک ہے. تیرا سالن بنایا وہی پڑا ہے کل رات والا؟ ہاں، نہیں کھانے کا روزانہ تو کھاتے ہو. شام کا پروتا سالن ہے. اب گرمی آ گئی ہے، کھٹا ہو جاتا ہے. کھاتے ہو تو نہیں کھانے آئے گا. کیا پتہ ذائقہ تبدیل ہو گیا ہو. تبدیل تھی آپ یادی تو والی نہیں سے چھوڑنا. تیرا پروتا سالن بھی کھا جائے گی. اس لیے میں پروٹھا سالن میں نا طاقت ہوتی ہے، اس لیے تیرا دیکھو کتنی موٹی ہو گئی ہے. طاقت تو ہے کیسا نہیں. ابھی ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، پٹھوں میں اتنی درد ہے نا. ان کی وجہ ہے. مانو تم کھاؤ گے روٹی؟ پیسے لینے کے لیے آ چکا ہے. ہیں؟ جی کیا چاہیے؟ پیسے کتنے؟ 50 روپے. چلو پاپڑ والا آ گیا ہے نا باہر، اسی وجہ سے 50 مانگے. میں نے کہا چپ کر گیا. 1,00,000 روپے مانگتا ہے. اسے پتہ ہے نا اپنی گنجائش کے ساتھ مانگنا چاہیے. ہاں بولا بھی کہہ رہا ہے. بولا کہہ رہا ہے نہیں صرف 50 روپیہ نہیں دینا، 10 روپے دینے جو جیب میں ہونے چاہیے. چلیں جی روٹی بن جائے. یہ کھلونے کل لیے تھے انہوں نے منیاری والے سے. جی ہاں، وہ بیچارہ آیا ہوا تھا تو پھر ہم نے وہاں سے لیے ہیں. جب بھی آتا ہے 500,000 روپے کا اخراجات ہو جاتے ہیں اس پہ. جی ہاں، بچوں اس کے میں بھی تو اپنے کھلونے بچوں کا پیٹ پالنا ہے نا. بس ہر روزی کسی کو روزی اللہ پاک ہی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لکھی گئی ہے نا وہ تو مل کے ہی رہتی ہے. اور جو نصیب ہے مقدر ہے ہر کسی کا اللہ تعالیٰ دے ہی رہا ہے. جی ہاں، وہ کہہ رہا تھا کہ میں بھی روزے رکھوں گا، راشن آئے تو مجھے بھی ضرور دینا. میں نے کہا ضرور دیں گے، آپ روزے رکھنا. وہ کہتے کہ میری بیوی بھی روزے رکھتی ہے اور میں بھی رکھتا ہوں. میں نے کہا انشاءاللہ ضرور آئے گا تو ضرور آپ کو دیں گے. اللہ تعالیٰ جی مدد کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ مدد پہنچائے گا تو انشاءاللہ ضرور دیں گے. اور خصوصاً ہم روزہ داروں کے لیے ہی پہنچائیں گے جی انشاءاللہ. ہاں کیونکہ ماہ مقدس کی تھوڑے دن رہ گئے انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے. تو روزے تو ہر بندہ رکھتا ہے. جی ہاں تو انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ جو روزے رکھتے ہیں ان تک پہنچایا جائے. اور جو مستحق دار ہیں جس میں یتیم بھی ہیں، بیوہ بھی ہیں جی اور غریب لوگ بھی ہیں ان تک پہنچائیں گے. تو انشاءاللہ روزہ رکھیں گے، دعا ہی کریں گے. جی ہاں، روزے داروں کا تو حق بھی بنتا ہے نا. ویسے بھی برکتوں والا مہینہ ہے. اس میں جتنی نیکی حاصل کی جائے کم ہے. جی ہاں نجات کا یہ مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بس بخش دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے. اور اس نیک مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کی جتنی بھی دل کی نیک تمنا ہیں، نیک خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ پوری کرے. آمین. اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے جو غریبوں کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے قیمتی سرمایہ میں سے نکال کے ہم تک پہنچاتے ہیں اور اس نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھے. آمین یا رب العالمین. دیکھتے دیکھتے جی نیاب بیٹی اتنی بڑی ہو گئی ہے ماشاءاللہ. اب ہم سے بولنا گوارا نہیں کرتی. بڑے لوگوں کی یہی خاص بات ہوتی ہے. یہ کسی سے گوارا نہیں یہ بوتل کون لے کے آئے؟ یہ ابو لے کر آئے. ابو لے کے آئے. مجھے یہ ڈال دو. پی لو آپ، پی لو. آپ سے بہت اچھی ہے. یہ تو میری فیوریٹ ہے پر کیا کروں میدے کا مسئلہ ہے نا. ہاں جی، میری بھی فیوریٹ ہی ہے. ہاں. مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہے. میں بڑے شوق سے پیتا تھا لیکن ڈاکٹر نے منع کیا. وہ کہتا ہے کہ زیادہ استعمال نہیں کرنی ورنہ روزانہ کی 1 لیٹر والی بوتل میری عادت تھی. ہاں جی، میری بھی نا اب عادت بن گئی ہے. پی کے دیکھ لیا نا، اب میں دوسرے تیسرے دن بوتل منگواتی ہوں. میرے گھر بھی ابھی نا 1 لیٹر والی بوتل پڑی ہوئی ہے. نہیں باجی نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. نقصان دیتی ہے. یہ کولڈ ڈرنک نقصان دیتی ہے. وہ نا گیس ہوتا ہے نا، مجھے گیس کی وجہ سے نا پھر میں نا بوتل پیتی ہوں نا، پھر گیس جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے. گیس والا سیرپ بھی لے کے رکھا ہوا ہے، وہ بھی نا اسے پیتی ہوں نا، اسے بھی گیس نہیں ختم ہوتا. بوتل پیتے پھر ختم ہوتا ہے. جو چیز بندہ کھائے نا اس میں نقصان ہے. بندہ بوتل پیے تو نقصان ہے، چائے پیے تو نقصان ہے، سگریٹ پیے تو نقصان ہے. یہ دیکھو نا، جو اللہ پاک نے قسمت میں جو چیز لکھی ہوئی ہے نا وہ ہونی ہے. وہ کھانے پینے سے نہیں ہوتی. جب اللہ پاک چاہتا ہے نا پھر وہ ہو جاتی ہے. نہیں تو وہ دیکھو نا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن لوگوں نے پوری زندگی ہر چیز اپنی مرضی سے دبا کے کھائی ہے. بزرگ ہو گئے پھر بھی اچھے بلے ودے ہیں. تو کچھ لوگ وہ ہیں پرہیز کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں بھیا ہم یہ چیز کھاتے ہیں جو ہے نا ہم بیمار ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر ٹھیک ہے کبھی نہیں ہوتے. اور یہ بھی ہے کہ وقت اور دکھ اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا. ہاں جی، یہ نا اللہ پاک کے اختیار میں ہے. وہ مالک ہے، وہ دکھ دے سکھ دے، یہ چیز اس کے اختیار میں. یہ انسان کی غلط سوچ ہوتی ہے ابھی میں یہ چیز کھاتا ہوں تو میں بیمار ہوتا ہوں. یہ ایسا نہیں ہوتا. اور یہ بھی ہے کہ دیکھیں سانول بھائی بالکل ٹھیک تھا. سانول بھائی کو اچانک ہاں میں درد ہوا اور اماں اس کو لے گئی، الٹرا ساؤنڈ کروایا سارا کچھ. اور وہاں پہ انہوں نے جیسی رپورٹیں نکلی، جو رپورٹ نکلنی تھی انہوں نے تو وہی بتانا تھا. ہاں جی. اور اس میں یہ انہوں نے کہا کہ گردے سوجے ہوئے ہیں
और पित्ता सोजिश कर रहा है, तो इस तरह उन्होंने सारी सूरत हाल बताई है। अब इसको ना सर का दर्द नहीं जा रहा सामल भाई को। हाँ जी, क्योंकि ना गुर्दों का मसला ना ज्यादा ही हो रहा है। जिस इंसान को देखो, या गुर्दा या पित्ता, इन दो चीजों का मसला सबसे ज्यादा है। और रिपोर्टें भी अम्मा ने अपने पास रखी हुई, दवाई ले तो आई है, लेकिन फायदा कुछ हुआ है अम्मा सामल भाई को, लेकिन लग तो नहीं रहा, सर वो पकड़ के सोया हुआ है। सिर तो दर्द तो छुड़ेदा नहीं सी पिया, दवाइयां खांदा पे अल्लाह बारे से। अगे एक धी दा दुख है, वातान पोत्र दा नाल शुरू थी गई। इंदी टेंशन नहीं छुड़ेंदी, हाणू दी टेंशन नाल काम तो रोक दीते ने, काम ही कैंसे कराने दे। बा बुढ़ी बुढ़ा है जो पेराने सारे सारे दिमाग। क्या कहते हैं, काम ना करे? हाँ, काम उधर न करे बिछी कई दा काम है ता करे सी तवला जूं गुड़ते जूं सोज कर वेतन ते पिता भी। अम्मा दिखाएं तो सही वो रिपोर्टें वगैरह कहाँ हैं, क्योंकि हमारी खुशी और हमारा गम हम अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करते हैं। हाँ जी, वो ना मुझे भी रात को पता चला था ना, मैंने अम्मी से बात की थी ना, तो अम्मी बता रही थी कि ना सामल की भी तबीयत ख़राब हो गई है, तो फिर आसमा बहन की भी तबीयत ख़राब है, ये भी नहीं, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही। तो फिर मैंने कहा चलो जाके ना पता करके आती हूँ, देख कर आती हूँ भाई कैसी तबीयत है। तो अभी भी बुखार नहीं उतरते, बहुत तेज़ बुखार है। दवाई वगैरह खाते हैं तो फिर कुछ आराम मिलता है, दवाई का जब असर ख़त्म होता है तो फिर जो है ना वो सर में दर्द और बुखार शुरू हो जाता है। इधर देखते हैं तो बाजी आसमा ये बेचारी ठीक नहीं हो रही, इसका इलाज चल रहा है। आज भी मेरे ख्याल में बाजी गई थी दवाई लेने। जी हाँ, आज भी गई थी, आज डॉक्टर मजीद के पास गई थी, वहाँ से उन्होंने कहा वो मुल्तान गए हैं, फिर नंबर लगा के आई हूँ, कल फिर जाऊँगी उनके पास लेके आऊँगी दवाई। अल्लाह ताला ही करम करे, बस इस नेक महीने के सदके अल्लाह ताला तमाम तकलीफ़ों को दूर करे, आमीन। ये देखें जी, ये सावल भाई की रिपोर्ट आ गई जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये डॉक्टर मोहम्मद इश्तियाक, ये एक रिपोर्ट है, और भी अम्मा दिखाएं, ये 2 रिपोर्टें और हैं। हमें तो पता नहीं चलता क्योंकि ये इंग्लिश में होती हैं और हमें तो उर्दू भी मुश्किल से आती है, तो इंग्लिश हमें नहीं आती। ये 3 जी उन्होंने बना के दी हैं, पता नहीं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ये 3 टेस्ट किया था ना उन्होंने, ये 3 टेस्ट हुए हैं, और इसके अलावा और भी हैं। अम्मा दिखाना, एक्सरे छिके ने, ये एक्सरे किया गया है, सीने का एक्सरे किया है, हाँ का दर्द था तो उसमें ये अब पसलियाँ नज़र आ रही हैं, ये पता नहीं चल रहा कि इसमें क्या है, ये तो डॉक्टर ही जानता होगा। और साथ में ये इसको पकड़ना बाजी, ये देखें, ये रिपोर्ट है, ये भी रिपोर्ट है, साथ में ये मेरे ख्याल में दवाएं वगैरह लिखी हुई हैं, यहाँ पीछे से भी लिखे हैं, ये इधर से भी लिखी अम्मी हुई के है। साथ मैं भी गई थी ना, तो मैंने अपनी कहा था, तो फिर मेरे लिए उसने पीछे से थामल भाई की रिपोर्ट से ना पीछे से लिख के दी कि उसने कहा था तुम ये गोलियाँ खाओ, तुम आराम आ जाएगा तुम्हें कुछ। फिर मैंने भी ये ले दी, और ये सामल भाई की मेडिसिन थी सारी, 1 हफ्ते की थी। उन्होंने कहा 1 हफ्ता ये खाए फिर इसे चेक करेंगे। अब बच्चा है बेचारा, उसकी इतनी उम्र भी नहीं है, लेकिन ये तकलीफ़ें जो है ना, जो रिपोर्टें बनी हैं, जैसा सूरत हाल है, तो ये बड़ी तकलीफ़ें हैं। जैसे गुर्दे की तकलीफ़ है, पित्ते की तकलीफ़ है, ये बड़ी तकलीफ़ें हैं। अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। परेशानी जब आती है, कहते हैं ना कि एक बुरा वक्त और एक मौत और उसके अलावा कोई भी तकलीफ़ या परेशानी जब आती है तो बता के नहीं आती, हाँ जी भाई, और अचानक ही आती है। परेशानी भी ज़्यादा बन जाती है ना। अभी एक इन टेस्टों के साथ 8,000 रुपये लग गए हैं, तो अब्बू की हालत वैसे, अम्मी तो वैसा काम नहीं कर सकती, तो बुजुर्ग हो गया। एक वही था कमाने वाला, अब वो भी बैठ गया, उसके काम से मना कर दिए, तो दवाई इतनी महंगी आ रही है, बस फिर अम्मा जो है ना वो ज़्यादा परेशान हो जाते। ज़ाहिर बात है, फिर परेशानी बनती है, पैसे ना हो तो फिर डॉक्टर जो है ना वो दवाई तो नहीं देते ना ऐसे फ्री में, फिर इसलिए आप ज़्यादा परेशानी बनी बैठी है। अल्लाह पाक कोई मदद इंशाल्लाह, अल्लाह पाक को हिला वसीला बनाएगा इंशाल्लाह। साथ में फातिमा भाभी और फ्याज भाई, ये आपको पहले पता है, ये अलग हो चुके हैं दोनों, और महनाज भाभी, सामल भाई, ये अम्मी अब्बू के साथ हैं। हाँ जी। और इंशाल्लाह ताला जी, अल्लाह ताला अगर तकलीफ़ें देता है तो सुख भी उसी के हाथ में, इंशाल्लाह। शफा भी वही देगा इंशाल्लाह। हाँ जी, क्योंकि अभी छोटी सी उम्र है, इतनी उम्र भी नहीं, अभी से ये इतनी बड़ी बड़ी तकलीफ़ें लग गई हैं, तो फिर आगे तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है ना, तो इलाज अब अच्छा कराएंगे तो ज़ाहिर बात है फिर ना इन चीज़ों से ना जो है ना ठीक हो जाएगा। बंदा बाजी ठीक हो जाता है, लेकिन उसके लिए पैसा हर सूरत ज़रूरत होता है। हाँ जी, पैसा तो भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक टेस्ट में 2-3 हज़ार तो एक टेस्ट में ही लग जाता है, क्योंकि अगर जिस बड़े डॉक्टरों के पास जो 1000-1500 तो उसकी फ़ीस होती है, तो जब टेस्ट वगैरह करते हैं 1000-1500 2-2 हज़ार रुपये का तो एक टेस्ट होता है, तो फिर गरीब बंदा ज़ाहिर बात है उनके लिए परेशानी तो फिर ज़्यादातर बनती है ना। फिर जब बंदा बुजुर्ग हो फिर और भी ज़्यादा तो बनती है, जब फिर नाल कोई कमाने वाला भी ना हो। अब्बू वो है जो उसका आपका दिल का मसला है, हम भी जानते हैं, बहन भाई भी जानते हैं कि अब्बू काम नहीं कर सकता इतनी ज़्यादा। सामल भाई है, मिट्टी घानी भी कर देता था, लोहा भी आगे मतलब डालते थे, तो अम्मी अब्बू चलो थपेर वगैरह जो है थोड़ी बहुत करते थे, अब वो मना कर दिया है। वो फियाज भाई वो अंज हो गया, तो
तो इसलिए ना फिर वो ज़्यादा परेशानी बनी बैठी है। और साथ में ये भी है कि इलाज भी इसका लंबा होता है। हाँ जी, इलाज तो लंबा होता है। मैं तो यही कह रही थी ना, वो शौकत भाई था ना, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाए, तो उसके भी तो यही गुर्दे वगैरह थे, तो उसकी कितनी तकलीफ थी वो तो हमने देखी है वहाँ पर, तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तो अम्मी ने जब मुझे बताया तो बड़ी परेशानी हो रही थी। मैंने कहा चल अल्लाह पाक ना, अम्मी को मैंने यही कहा, मैंने कहा भाई इसका ना आप लग कर इलाज कराएं। तो फिर अम्मी कहने लगे भाई लग के इलाज तो कराएं, तो फिर उनके लिए पैसे भी तो होने चाहिए, डॉक्टर तो फिर बात नहीं गिनते। मैंने कहा अल्लाह वाले से अल्लाह को सबब बनाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हीला और वसीला खुद ही बन जाता है। जी हाँ। और दुख उसके बारगाह से आता है तो शफा भी उसी की बारगाह से आती है। और जब शफा आती है तो पता नहीं चलता, और बंदा जो है ना अगर मिट्टी भी खा ले उसमें भी अल्लाह ताला शफा रख देता है और बंदा ठीक हो जाता है। अभी बुखार भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस दिन भी उन्होंने चेक किया तो 102 पर बुखार था, ब्लड भी इतनी तेज़ था ना, बहुत ही ज़्यादा सामल भाई का तेज़ था। फिर वहाँ उन्होंने टीके वगैरह भी लगाए थे खुद भी, फिर जाके ना कुछ जो है ना तबीयत संभली इसकी। नहीं तो जब हम डॉक्टर सलीम अख्तर के पास लेके गए बिल्कुल हालत नहीं थी, चल भी नहीं पा रहा था। फिर जो उन्होंने टीके वगैरह लगाए, इतनी तेज़ बुखार और ब्लड इतनी तेज़ था, कह रहा था मेरे दिमाग वाले रग्गा फटने वाले हैं। मैंने जल्दी जल्दी कहा, फिर अम्मी साथ में बैठी थी, डॉक्टर को कहा, उन्होंने चेक किया, फिर उन्होंने टीके वगैरह लगाए, फिर ये दवाई भी खिलाई वहीं पे भी, अब खा रहा है देखो। अगर और अम्मा बेचारी एक तो आसमाबाजी की वजह से परेशान रहती है, और अब सांवल भाई की तबीयत ऐसी हो गई है कि रिपोर्टें अम्मा खुद करा के आई है, तो उस वजह से अम्मा परेशान है। अम्मा अल्लाह ताला बहुत बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह दुख देंदे तो अल्लाह सुख ही दे देंदे। बस ये जरा टेंशन तो औलाद दी बहु होंदी है। पर मैं कहना प्यू वत जकदमी रोजे रखे दे मां रमजान सोने तो चलो मिट्टी घाणी बेलिए कर देंदा ही, चलो मैं नाल थपे नहीं अमी नो ही थी वे बस उनको आन कही तो रोक दीते ने। हाँ परेशानी तक पता है बिगानिया जाइन, जे तक बंदा मजदूरी न करे तब तो कोई राहनी नहीं देता। उडो बट्ठे का कर दो जरा बच्चा वधे जा ओ डेवने से भाई गल टेंशन हाँ जूं ज्यादा है मेरे को। अल्लाह मालिक अल्लाह अम्मा, बारे से हाँ वो रब रहमान तो है ना। देखें बातों बातों में कौसर बोतल मुकाने लग गई है और मुझे नहीं पिलाई अभी तक, मैं देख रहा हूँ। मेरी ना बेटी मांग रही हो, कहते हैं मम्मा बोतल दो बोतल दो, इसलिए मैंने गिलास में पहन के ना पीछे से छुपा रखी है बोतल। 2 बार दी है ना, देखो ये कहते मुझे दो। नयाब दे दे इसको, दे दे पिला। मैंने 2 बार पिलाई है ना, तो फिर ज्यादा ठंडी है ना, फिर इसे ना इसकी तबीयत खराब हो जाती है। नहीं नहीं, ये देखें अब कैसे कैसे झगड़ा देखें कैसे करती है। ये औलाद की खसूसियत होती है। छोटे होते हैं नखरे करते हैं, जब बड़े हो जाते हैं फिर भी बातें सुननी पड़ती हैं। छोटे लाभ नखरे होते हैं, बड़े लाभ नखरे, माँ बाप से नखरे बर्दाश्त करते रहते हैं। और ये भी है कि वो सरायकी में मिसाल है ना, हमारे बड़े कहते थे, वो कहते हैं कि छोटे अलाई बनता है ना मोहताज, हाँ, बड़े अलाई भी ना मोहताज। छोटे लाई है ना, जरा से इनको कुछ हो जाए फिर रोने लग जाते हैं, मनाते हैं तो मनाने का भी अदाब होता है। छोटे अला ए जेरे इन्हें नखरे होंदन ओ साकु मनने पोंदन। हाँ जी। बड़े अला ए साकु वाल जेरे कोटेंदन वाल साकु इन्हें मननी। नहीं, जब 2-3 बच्चे हो जाए फिर एक की साइड लो, दूसरा कहता है देखो तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम तो इससे ज्यादा प्यार करती हो। फिर ये बातें भी ऊपर सुनने को मिलती वालदैन है। को सुननी पड़ती है हाँ कि जी। ये तुम्हें प्यारा है। हाँ जी, और मैं मैं प्यारा नहीं। नहीं हूँ। हाँ मम्मा, हाँ मम्मा ये देखें, ये ट्राली में अगर बोतलें लोड होने पड़े वो कहते मम्मा इसमें डाल के हैं, दो। मम्मा इधर देख, इसमें हो ट्राली में, चलें ठीक है, इसको ट्राली में डाल के दें, ट्राली में पिएगी। ये देखें ये कैसे लगाए हो रबड़। आपके ना बाल आ गए ना, तो आज कोसर बाजी ना इसे गंजा नहीं करवा रही थी, गंजा करवाया, अब बाल हैं तो अभी से पोनिया लगना शुरू हो गया नहीं आपको। और भाई सदीक ने जब उस तरह लगवाया था तो सारे सर में जो है ना टुक्के लगवा दिए थे। हाँ जी, इसका चाचू था ना, फिर वो चुप नहीं कर रही थी ना, रोए जा रही थी, तो फिर बच्ची थी वो जितनी पकड़ते थे वो फिर भी जो है ना मशीन वो लग ही जाती थी। अठी 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 आ आउटी दे भैया, देव भाई देव बोतल दे, चल पी पी। ईंटें जी ये सूख गई हैं। जुम्मा और हफ्ते के दिन जी हमारी छुट्टी हो जाती है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आ चुके हैं काम पे। हीटर चल गए है और पानी उस कस्सी में आ गया है। सुबह बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सुबह ठंड भी होती है। अभी चले मौसम थोड़ा तब्दील हो गया है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा ठंड हुआ करती थी, और साथ में पानी जो होता बर्फ़ बन जाता था, मट्टी बर्फ़ बन जाती थी। गरीब के लिए एक नहीं 100 परेशानियां होती हैं। सर्दी में काम नहीं होता ठंड की वजह से, और अब जैसे गर्मी शुरू होगी हमारा काम धूप पे बैठने से, क्योंकि हम धूप पे बैठ के काम करते हैं, तब परेशानी होगी। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें ये काम दिया है, वज़नी हो या जैसा भी हो, अल्लाह का शुक्र है। चलें, अल्लाह ताला ने कोई ना कोई काम दिया तो है। रिज़्क़ हलाल, जितना काम वज़नी होता है उतना बरकत ज़्यादा होती है, और अल्लाह ताला खुश होता है जब बंदा रिज़्क़ हलाल कमा के खाता है। आज जी मैं बना रहा हूँ बिरयानी, बहुत ही मज़ेदार बिरयानी, और अपनी बाजी कौसर के लिए।
और भाई सदीक के लिए ये देखें, ये मैं ले आया हूँ चिकन 1 किलो। प्याज वगैरह सारे मैंने डाल दिए हैं, टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे जी चावल रख दिए हैं, तेरा नहीं पोस्ट लगा के वो मैं निकाल लेता हूँ, इस देगड़ी में पड़े हुए हैं। ये जी हमारे 1 किलो चावल हैं, इसमें भिगो के रख दिए हैं तेरा ने। इसको जी मैं बंद कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल जी हमारे गल चुके हैं, मैं इनका पानी निकाल देता हूँ। देखें जी सूरज गरूब हो गया है और देखें कितना प्यारा मंजर है। तेरा ने जी गाय का दूध निकाल के अंदर रख दिया है और सबको दूध अब जो है ना तकसीम कर देगी। और हमारी वीडियो जो है ना वो भी कंप्लीट हो चुकी है। और अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारी बाजियों को, अपनी मेरी माओं को हमेशा अपनी ज़ुबान में रखे। माह मुक़द्दस की आमद है जी। अब दिन ब दिन इंतज़ार है कि अल्लाह ताला जल्द उस दिन को लेके आए जिसमें हम रोज़ा रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और तमाम उम्मत मुस्लिमों को इंतज़ार है क्योंकि ये बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। तो इसमें हर बंदे को जल्दी होती है कि माह मुक़द्दस आए और अल्लाह ताला उस दिन तक हमें मोहलत दे ताकि हम भी इसमें रोज़े रख सकें, इबादत कर सकें, अल्लाह ताला को राज़ी कर सकें। क्योंकि ये ऐसा महीना है कि इबादत का शौक़ ज़ौक़ बढ़ जाता है, मसाजिद ज़्यादा आबाद हो जाती हैं और 5 वक्त नमाज़ पढ़ी जाती है, कुरान मजीद पढ़ा जाता है, अल्लाह ताला का ज़िक्र उज़कार किया जाता है। और साथ में जो मेरी बाजियाँ, मेरी माएँ, देने वाले हमारे बहन भाई जितने भी इस दुनिया में जिनको अल्लाह ने दिया है तो माशाल्लाह बढ़ चढ़ के वो तावन करते हैं। गरीब, मस्कीन, यतीम, बेवा, उनके लिए अपने कीमती सरमाए में से निकाल के देते हैं, नेकियां हासिल करते हैं। क्योंकि किसी ज़रूरतमंद को देना ये एक बहुत बड़ी नेकी है और किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाना ये भी एक बहुत बड़ा अजर है, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेकी है जो बंदा हासिल करता है। जो मदद उन तक पहुँचती है, यकीन करें गरीब जब रोज़ा रखता है तो सहरी इफ्तारी उसकी अच्छी होती है तो माशाल्लाह वो कितनी दुआएं करता है। किसी को इफ्तारी करवाना, किसी को सहरी करवाना ये एक ऐसा अमल है जिसकी दर्जात जो है ना इतनी हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। और अल्लाह ताला की बार में इसका बहुत बड़ा अजर अज़ीम अल्लाह ताला अपने बंदे को नवाजेगा। क्योंकि ये दुनिया के फ़ानी है और जितने भी हमारे बहन भाई हैं जो हमेशा तावन करते हैं और हर माह रमज़ान में उससे पहले भी जो ज़रूरतमंद होते हैं उनकी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करते हैं और माह मुक़द्दस में तो बढ़ चढ़ के माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो तावन करते हैं। गरीब, मस्कीन, यतीमों तक वो अपने कीमती सरमाए में से निकाल के हम तक पहुंचाते हैं और हम जो है ना आगे जो जिसका नसीब होता है, मुक़द्दर होता है, उस तक पहुंचाते हैं। तो माशाअल्लाह वो गरीब हैं, जब उनको ये चीज़ें मिल जाती हैं तो वो माशाअल्लाह खुश हो जाते हैं और रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं, उसमें बंदा हिस्सेदार बन जाता है जो खसूसन उनके लिए ये सारा एहतमाम करता है। अल्लाह ताला पता नहीं किस बात में राज़ी है, वो रब रहमान है। जब भी बंदा खालिस उसी के लिए देता है तो माशाअल्लाह वो दर्जात को बढ़ा देता है, कारोबार में बरकत डाल देता है और घर में जो परेशानियां आने वाली होती हैं या मौजूद होती हैं अल्लाह ताला दूर कर देता है। अल्लाह ताला जो बीमारियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, दुश्मन के शर से, शैतान के शर से अल्लाह पाक उसको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में ले लेता है। क्योंकि जो उसकी इंसानियत का खिदमत करता है, इंसानियत के लिए सोचता है तो अल्लाह पाक उसके लिए रास्ते आसान फरमा देता है और उसकी रोज़ी में भी बरकत होती है। क्योंकि वो रब रहमान की खातिर बढ़ चढ़ के तावन करता है तो अल्लाह ताला को ऐसे बंदे बड़े महबूब हैं। अल्लाह ताला ऐसे बंदे से बहुत प्यार करता है। जितनी मेरी माएँ, जितनी मेरी बाजियाँ, जितने मेरे भाई, जितने मेरे बुज़ुर्ग हमेशा कोशिश करते हैं, हमेशा इस नेकी में बढ़ चढ़ के तावन करते हैं, हिस्सा लेते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है वो जहाँ भी देते हैं, जिस जगह पे भी पहुँचाते हैं, हकदार तक पहुँचता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला उनका ये कीमती सरमाया अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला उनके कारोबार में, माँ रिज़्क़ में, औलाद में, सेहत में, इल्म में, जानो माल में अल्लाह ताला ढेरों ढेर बरकत रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला इतना उनको नवाजे कि वो देते देते थक जाएं लेकिन उनके ख़जाने में कोई कमी ना आए। अल्लाह ताला इतना उनको अता करे कि घर में रखने की जगह ना हो। अल्लाह ताला उन पे राज़ी रहे और उनकी हर परेशानी को, हर मुसीबत को, हर तकलीफ़ को अल्लाह ताला दूर करे। उनके बच्चों की उम्र दराज फरमाए और अल्लाह ताला उनको हमेशा अपने बच्चों के साथ खुश और आबाद रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मगरिब का टाइम हो गया है, अज़ान का वक्त होने वाला है तो मैं अपनी प्यारी बाजियों से, अपनी माओं से, अपने भाई बुज़ुर्गों से, सब अहले इस्लाम से इजाज़त लेता हूँ। इंशाअल्लाह सारी बात है ज़िंदगी, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में अपने भाई को याद रखिएगा और मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज़।